Hello children, this is a module on complete chapter reading and explanation for the chapter The Making of a Scientist. ये चैप्टर क्लास 10 इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में है और ये एक्चुअली एक बायोग्राफी है अबाउट फेमस साइंटिस्ट एंड हाउ ही got motivated and made a research and he became famous. So basically ये प्रोज है, मतलब इसमें बहुत सारे फैक्ट्स होंगे. यू विल हैव टू मार्क, लर्न एंड अंडरस्टैंड जस्ट लाइक यू हैड चैप्टर नेल्सन मंडेला. तो कुछ फैक्ट्स हैं पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्स भी नहीं है. चैप्टर बेसिकली ईजी है. जो भी मैं आपको मार्क कराऊंगी आप उसको ध्यान से देखना. एंड वी आर गोइंग टू कम्प्लीट द एंटायर दिस चैप्टर अलॉन्ग विद एनोटेशन. मैं आपको पॉइंट्स भी मार्क करके बताऊंगी और जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब बताने वाली हूँ. तो वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, और जो मार्क मैंने किए हैं पॉइंट्स या तो उनके आप प्रिंट ले लेना या फिर आप अपनी बुक में भी अकॉर्डिंगली मार्क कर लेना. सो लेट्स प्रोसीड. So let's summarize the chapter first of all. This is a story, not a story, this is actually a biography. These are all correct, right, true facts. So it is all about Richard H. Ebright. This is the name of a scientist. He grew up in Reading. Reading एक जगह है लंदन में और पेंसिल्वेनिया वहाँ का वो सिटी है. तो when he was in kindergarten, मतलब KG classes में, he collected butterflies. His mother used to take him on trips, bought him a telescope, microscope, cameras, mounting materials and other things that all were required for learning. और उसका एक इंटरेस्ट आया बटरफ्लाई कलेक्शन में. जब वो सेकेंड क्लास में आया, he had collected all 25 species of butterflies found around his hometown, and his mother had given him a children's book called The Travels of Monarch 10. Monarch 10, monarch एक butterflies की कैटेगरी है, स्पीशीज़ है. तो इस बुक से उसको वर्ल्ड ऑफ साइंस उसके लिए ओपन हुई. ही जॉइन डॉक्टर उकुआट. ना उकुआट डॉक्टर एक रिसर्चर थे इन द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कैनेडा, and he was undertaking a project through this book, the book named The Travels of Monarch 10. Now he participated in that project and for several years he kept raising butterflies under his observations की डिटेल सारी चैप्टर में है. and all that got his interest in research work. अब उसको रिसर्च करने का इंटरेस्ट आ गया. करते करते इन ग्रेड 7 ही लॉस्ट द काउंटी साइंस फेयर. बड़े सारे साइंस फेयर्स वो जीतता था बट क्लास 7 में ही लॉस्ट दिस कॉम्पिटिशन एंड ही डिसाइडेड टू वर्क ऑन रियल एक्सपेरिमेंट्स. Now for this real experiment, where did he get the idea? He got the idea from the same doctor, Dr. Ukuot. Now for his 8th class project, he tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. अब viceroy butterflies देखने में monarch जैसी लगती हैं, वो उनको copy क्यों कैसे करती है इसके बारे में he made the research, and this project stood first in zoology division and third in overall in the county science fair. ये आपको ये details learn करनी पड़ेंगी. Then he won the third place for zoology. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. And this project won him first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. In his third year in high school, he began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. यहाँ पे इस स्लाइड पे अभी पहले 2 पॉइंट्स में ये 2-3 बातें निकल के आती हैं. आपको एज इट इज़ इसको लर्न करनी, ये रटने वाला लेसन है. आप इसके फैक्ट्स मेमोराइज करेंगे, लर्न करेंगे तो ये आपका पक्का होगा बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ फैक्ट बेस्ड चैप्टर. सो रिचर्ड ए वीरर, this is the name of a teacher. This teacher is that teacher who admired and he had all praises for him. उनकी बहुत तारीफ करते थे साइंटिस्ट की, एब्राइट की. and apart from being a science student, Ebright is not just a science researcher or a science student. He excels in many other things. Not just studies, he has good intellect, curiosity and the willpower to make a scientist, because what it takes in making a scientist, यही चैप्टर का नाम है. और यही जो लास्ट लाइन मैंने लिखी है, दिस इज टेकन, इट इज़ बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक एंड दिस इज़ वॉट यू हैव टू लर्न. दिस इज़ अ थीम ऑफ द चैप्टर कि सिर्फ एक साइंस वाला दिमाग नहीं होना चाहिए. यू हैव टू हैव इंटेलेक्ट अपार्ट फ्रॉम क्यूरियोसिटी एंड विल पावर. सो दैट इज़ वॉट हैज़ मेड दिस साइंटिस्ट ब्रिलियंट. Let's proceed the chapter, The Making of a Scientist. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new world theory on how cells work. तो जिसकी बात हो रही है उस आदमी का नाम है रिचर्ड एच एब्राइट. मैं अब इनको एब्राइट बोलूँगी थ्रू आउट द चैप्टर. एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थियरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. आपको मोटी मोटी जो बातें लर्न करनी है वो मैंने सब हाईलाइट कर दी हैं. आपको सिर्फ रटना है, थोड़ा बहुत समझना है. चैप्टर में ज़्यादा समझने वाला कुछ नहीं है. एब्राइट की बात हुई है. एब्राइट को कौन कौन सी फर्स्ट अचीवमेंट जो चैप्टर में मैंशन है, दैट इज़ दैट ही वॉज अ स्काउट ऑफ द ईयर. स्काउट्स क्या होते हैं? वो एक सोशल एक्टिविटीज़ करने वाला एक ग्रुप होता है, उसके
मेंबर्स को स्काउट्स बोला जाता है. तो ही वॉज अ स्काउट. नंबर 1 आपको ये लर्न करना है. और उसकी सबसे पहले उसकी फेम उसको कब मिली थी एवराइट को? थ्रू एन आर्टिकल इन द मैगजीन नेम्ड प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. आपको ये 2 बातें यहाँ लर्न करनी है. आगे चलते हैं. एंड एट दिस टाइम व्हाट हाउ ओल्ड वाज ही? एवराइट वाज जस्ट 22 ईयर्स ऑफ एज. अब 22 ईयर्स के अब तक के टाइम में उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ, ये सब कुछ आएगा अब. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students in sports that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. For Richard Ebright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields. And it all started with butterflies. तो ये सबसे पहली अचीवमेंट थी एब्राइट की, जिसको एक मैगजीन में रिपोर्ट मिली थी. अभी इस सेकंड पैराग्राफ में सिर्फ यही समझना है और कुछ खास नहीं है. और अब ये जो रिसर्च वर्क की स्टार्टिंग कैसे हुई वो अब बताएंगे थर्ड पैराग्राफ में. मैंने ये पॉइंट समरी में फर्स्ट पॉइंट में दिया था आपको. एब्राइट ग्रू अप इन द नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया. ये 2 प्लेसेस के नेम्स हैं. रीडिंग है पेंसिल्वेनिया में. सेकेंडली, देयर वाज़न्ट मच आई कुडंट डू देयर. वो अकेला बच्चा था, द ओनली चाइल्ड, ही डिडंट हैव फादर एंड हिज मदर. ऑब्वियसली अ पेरेंट को बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो क्या करती, तो उन्होंने उसका इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी में डेवलप कर दिया. आई सर्टनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद द टीम ऑफ 1, क्योंकि वो अकेला था. बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स. तो वो कलेक्शंस करने लग गया बचपन में, छोटे होते. वॉट ही डिड, सो ही डिड एंड ही डिड एवर. बिगनिंग इन किंडरगार्टन. अब यहाँ पे आपको पहले एक चीज़ लर्न करनी. किंडरगार्टन मतलब केजी क्लासेस में. एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज. ही कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स. ही बिकेम ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट. तो किंडरगार्टन में उसने क्या क्या स्टार्ट किया, सब हाईलाइटेड है, इसको आप लर्न कर लेना. फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड. अब उसका माइंड ब्राइट था और फर्स्ट ग्रेड से क्यूरियोसिटी स्टार्ट हो गई. द फर्स्ट मतलब फर्स्ट ग्रेड से, केजी के बाद फर्स्ट ग्रेड आता है. अब मदर का रोल क्या रहा, यहाँ पे हमने ये मार्क करना है. ही हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. ये आपको role of mother in developing his curiosity and identifying his bright mind. This was the role of mother. इसको आप mark करो और learn करो. I was his only companion until he started school, his mother said. After that, I would bring home friends for him, but all night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. अब 3rd grade में क्या हुआ? His father died. Now, when his father passed away, mother and son, they were the only friends. They were just like friends. They kept on doing new things every day, and this led to evolvement or evolution of Ebright's curiosity and intellect. She and her son spent almost every evening at the dining room table. तो यहाँ पे उन्होंने किस तरह से इनकी companionship एक creativity में turn होती गई. First point, every evening they used to spend a good deal of time. If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things. His mother said he liked it and he wanted to learn. So every evening, they used to spend time at the dining room, number 1. Secondly, mother would find lots of things for him to learn and do something. Aage. And learn he did. He earned top grades in school on everyday things. He was just like every other kid. By the time he was in 2nd grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies. अब देखो फर्स्ट ग्रेड में क्या क्या हुआ. फर्स्ट ग्रेड में उसकी मदर ने उसका इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू किया और उसको बहुत सारी चीज़ें ला कर देती थी. अब बात आती है सेकंड ग्रेड में क्या हुआ. सेकंड ग्रेड में क्या हुआ, 22 स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज जो उसके होम टाउन में थी, मतलब आसपास रीडिंग सिटी में थी. रीडिंग नेम है सिटी का. उसके आसपास जो भी 22 स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज थी सभी को उसने कलेक्ट कर लिया था. नीचे एक बॉक्स है, नो नीड टू लर्न दैट. Let's proceed. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch 10. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. अब देखो सेकेंड ग्रेड में उसने 22 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्ट कर ली. उसके बाद मदर ब्रॉट हिम अ बुक. नेम ऑफ द बुक क्या था? द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10. मोनार्क एक स्पीशीज होती है बटरफ्लाइज की. उस बुक ने उसका इंटरेस्ट रिसर्च वर्क में डेवलप किया. कैसे किया? व्हाट इज़ मोनार्क बटरफ्लाई? इट इज़ अ बटरफ्लाई दैट माइग्रेट्स टू सेंट्रल अमेरिका एवरी ईयर. अब कैसे, व्हाट वाज द रोल ऑफ द बुक, ये हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे. इट इज़ हाईलाइटेड इन ग्रीन. उसको देखो.
Now, at the end of the book, the readers were invited to help study butterfly migrations. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart. आप इनको सिर्फ डॉक्टर उकवाट भी लिख सकते हो. URQUHART स्पेलिंग्स डॉक्टर उकवाट इज इनफ. पूरा नाम लर्न करने की जरूरत नहीं है. Of the University of Toronto, Canada. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light and adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. अब देखो, बुक के पीछे क्या था? एक एक्टिविटी थी. एक्टिविटी किसने डिज़ाइन की थी? डॉक्टर उकवाट ने, नंबर 1. दूसरा, व्हाट वाज द टास्क इन द एक्टिविटी? टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस. ये था उसका टास्क. कैसे? टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च. तो उसके वजह से एब्राइट ने क्या किया? एब्राइट यूज टू अटैच लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स. मोनार्क्स मतलब मोनार्क बटरफ्लाइज. और जिसके पास भी वो टैग बटरफ्लाई पहुंचती थी वो टैग उतार कर डॉक्टर उकवाट को भेज देते थे. ये टास्क था. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन लेट समर. अब लेट समर में ये टाइम शुरू होता है बटरफ्लाई कलेक्टिंग का. उस टाइम पे बटरफ्लाइज बहुत फ्लरिश करती हैं. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through the life cycle, from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. Then he would tag the butterfly wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. अब वो जो टास्क एक्टिविटी में था वो ग्रीन में हाईलाइटेड है. और इस टास्क की वजह से अब उसने एक रिसर्च करने में पार्टिसिपेशन तो दी डॉक्टर उकवाट के साथ, लेकिन उसको लगा कि मैं भी अपनी जो कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाइज है उसको और कैटेगोरिकली क्लियरली करूं. उसके लिए उसने क्या किया, ये सारा कुछ इस पैराग्राफ में बताया हुआ है. सबसे पहले उसने क्या किया, वो एक फीमेल मोनार्क को कैच करता था, उसके एग्स लेता था और उसके पूरे लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करता था और उसके बाद अपनी ही बटरफ्लाइज को वो टैग करता था और उड़ने के लिए चले जाने देता था. इस तरह से बटरफ्लाइज को वो खुद रेज करने लगा अपने बेसमेंट में. ऐसा उसने क्यों किया? उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बटरफ्लाइज को टैग कर सके. ज़्यादा से ज़्यादा बटरफ्लाइज को टैग करेगा तो उसका नाम डॉक्टर उकवाट के पास पहुंचेगा, जो भी बंदा उस टैग को रिमूव करके आगे भेजेगा. Eventually I began to lose interest in tagging butterflies. अब why did he lose interest in tagging butterflies? ये देखने वाली बात है. पहली बात, ये बहुत टीडियस काम था. बटरफ्लाइज को कैच करना मुश्किल, उनको रेज करना मुश्किल. और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसने एक बटरफ्लाई को टैग कर दिया तो कोई और उसको अनटैग करके वो टैग डॉक्टर उकवाट को भेजे. पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोसेस. सो ही सेड इन ऑल टाइम I did it, only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they are not more than 75 miles from where I lived. तो वो कहता है कि किसी ने उनको कैप्चर करने की या तो कोशिश ही नहीं करी या कैप्चर कर ही नहीं पाया. और वो जो बटरफ्लाइज थी, इन अबाउट सो मैनी बटरफ्लाइज ही हैड टैग्ड, ओनली 2 वर फाउंड, और वो भी उसके घर के आसपास ही. तो इस वजह से, क्योंकि इस एक्टिविटी का रिजल्ट सॉलिड नहीं आया, तो उसने ये जो सारी एक्टिविटी थी रेजिंग बटरफ्लाइज और टैगिंग बटरफ्लाइज में उसका इंटरेस्ट कम हो गया. वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल, पिक्चर एक सेंटर में मैंने पिक्चर दी है, ये मोनार्क बटरफ्लाई की पिक्चर है. आप इसकी स्ट्रक्चर और शेप देखो. दिस बटरफ्लाई, दिस स्पीशीज इज़ वेरी कॉमन, इवन वी हैव सीन इट अराउंड अस इन इंडिया. Now I am going to show you a picture. This picture has 3 pictures you can see. Monarch, first picture, monarch with closed wings and monarch with open wings, and then you can see viceroy with closed wings and viceroy with open wings, and then also there is the queen with closed wings and queen with open wings. Now you can just observe carefully in the shape of their wings, in the structure, in the, you can say, features of the wings. वाइसरॉय के विंग्स में किस तरह से एक लाइन सेंटर में ड्रॉ हो रही है, सेंटर वाले पार्ट में, जिसको सर्कल बना के शो किया हुआ है. क्वीन के जो विंग्स हैं उनमें डॉट्स हैं, उनमें लाइंस और पैटर्न्स कम हैं, और मोनार्क में कितने क्लियरली डिफाइंड बाइफर्केटेड ऑरेंज के पार्ट्स हैं. तो मोनार्क, वाइसरॉय और क्वीन, दीज 3 नेम्स ऑफ बटरफ्लाइज विल बी यूज. दैट इज व्हाई आई हैव शोन यू दीज 3 काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज. I hope you are liking my classes. Thanks for being with me at eClasses with Shalini ma'am. I request you all to please like, subscribe and press the bell icon.
If you do that, your gesture is going to really motivate me so that I create more such videos and bring more useful content for you. Thank you so much. Now, we proceed with the story. In the 7th grade, he got a hint of what real science is. When he entered a county science fair and lost, it was really sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. Ebright said his entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. अब 7th ग्रेड तक वो पहुंच गया. 7th ग्रेड तक उसने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करा रखा, ये सब वो सब करा. बट अल्टीमेटली 7th ग्रेड में साइंस काउंटी फेयर नाम का एक कंपटीशन होता है जिसमें वो हार जाता है. अब जब वो हारता है तो यू नो द लॉस, द फेलियर, इट शुड बी मोर ऑफ अ लर्निंग. वो लर्न क्या करता है इस फेलियर से कि जो विनर्स थे उन्होंने क्या किया था. उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्होंने नीट उनका डिस्प्ले था. इन दो चीज़ों की वजह से वो हारा था. अब उसने क्या किया था, उसने एक फ्रॉग टिश्यूज़ की स्लाइड बनाई थी बस, तो उसमें कुछ रियल काम तो हुआ नहीं. वो तो सिर्फ एक बनी बनाई चीज़ को आपने उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ करके उसको दिखा दिया. तो रियल एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं हुआ था उसका अपना, क्रिएटिव इनोवेटिव नथिंग. सो दिस इज व्हाट ही रियलाइज्ड आफ्टर लूजिंग एट द काउंटी साइंस फेयर. Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's fair, I would have to do a real experiment. और real experiment उनको कौन करा सकता है? Dr. Urquhart. So the subject I knew was in the insect work he had been doing in past several years. अब उसको इतने सालों से एक ही काम आता था रियल करने वाला, साइंस रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड. वो क्या था? बटरफ्लाइज को रखना, इंसेक्ट्स को रखना, पालना, उनको फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज को रेस करना. यही तो उसका रियल एक्सपेरिमेंट था. तो डॉक्टर उकोवाट से अब वो आइडियाज़ लेता है ताकि वो रियल एक्सपेरिमेंट कर सके. सो ही रोट टू डॉक्टर उकोवाट फॉर आइडियाज़ एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स. दोज केप्ट एब्राइट बिजी all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. अब डॉक्टर उकोवाट ने आइडियाज़ दिए, एब्राइट उनके ऊपर लग गया, बिजी रहा और उन प्रोजेक्ट्स के साथ वो जीतता रहा. एंड ही वन सो मेनी काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स को वो जीतता रहा. अब बात आती है 8th ग्रेड में. 8th ग्रेड में उसने क्या किया? अब उसने एक थीम उठाया. ही ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिसीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स. मैंने ऑरेंज में हाईलाइट किया हुआ लेफ्ट पेज पे. अब 8th ग्रेड की स्टोरी हम शुरू करते हैं. तो उसने एक डिजीज़ को, इंसेक्ट्स को, मोनार्क कैटरपिलर्स की एक डिजीज़ को थीम बनाया. एब्राइट थॉट द डिसीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real results, but when I went ahead and showed that I had tried the experiment, this time I won. तो ये जो एक्सपेरिमेंट उसने लाइव किया, रियल किया, किसके बारे में था, कैसे था, उसको उसने दिखाया प्रोजेक्ट में, वो जीत गया. फिर आई बात 9th ग्रेड की. नेक्स्ट ईयर द साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी. अब 9th ग्रेड में क्या थीम था? आपको ये सब ग्रेड वाइज नोट्स बना के इसको लर्न करना पड़ेगा. सो 9th ग्रेड में क्या थीम था? वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स. इसको मैंने ब्लू में हाईलाइट किया तो इसको भी आप लर्न करोगे. वाइसरॉय कौन सी होती है, मैंने आपको पिछले पेज पे दिखाया, और मोनार्क्स की वो कॉपी करती हैं. द थ्योरी वॉज दैट वाइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स. वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर. तो ये एक अडेप्टेशन बिहेवियर था जिसको कि वो टेस्ट करता है अपने एक्सपेरिमेंट में. तो एब्राइट ने क्या प्रोजेक्ट लिया? टू सी वेदर बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स. ही फाउंड दैट अ स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड. It would eat all the monarchs it could get. Ebright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. तो उसने प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं है. स्टार्लिंग एक बर्ड होता है और वो कोई ऑर्डिनरी खाना नहीं खाती, वो जाके सारे के सारे मोनार्क बर्ड्स खा लेती है. तो ये सोचना लोगों का गलत था कि मोनार्क्स को बर्ड्स नहीं खाते, मोनार्क्स को भी बर्ड्स खाते हैं. और वाइसरॉय हाँ कॉपी ज़रूर करती है मोनार्क को, तो उसने ये प्रूव कर दिया. दिस इज़ वॉट यू हैव टू लर्न अबाउट हिज 9th ग्रेड प्रोजेक्ट. अब बात आती है आगे बढ़ के हाई स्कूल. हाई स्कूल होता है इनका 10th के बाद, 10th के सेकेंड ईयर में, मतलब कि पॉसिबली दिस शुड बी क्लास 12 जैसे हमारा होता है. इन द सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, यानी इनका हाई स्कूल होता है 9th में, 9th के बाद 10th. तो हाई स्कूल में उसने क्या किया?
Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on life of cells. अब इसका हाई सेकेंड ग्रेड हाई स्कूल में क्या थीम था? डिस्कवरी ऑफ अननोन इंसेक्ट हार्मोन, और इसकी वजह से क्या रिजल्ट आया? लाइफ थ्योरी ऑन लाइफ ऑफ सेल्स भी उसने बनाई. अब इस प्रोजेक्ट में उसने क्या किया था? एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहता था वो इस प्रोजेक्ट के साथ. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा? अब जो मोनार्क प्यूपा होता है उसके ऊपर 12 छोटे छोटे गोल्डन कलर के स्पॉट्स होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है? सो ही वांटेड टू आंसर द रीजन, द पर्पस बिहाइंड 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा. अब यह मोनार्क प्यूपा है, बटरफ्लाई नहीं है, ये आपको याद रखना है जब आप इस प्रोजेक्ट की थीम लर्न करोगे. तो एवरीवन अज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल. ऑर्नामेंटल मतलब सिर्फ डेकोरेशन के लिए, सुंदर, सिर्फ उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, हर कोई ये सोचता था. बट डॉक्टर हुकुआ डिडंट बिलीव इट. To find the answer, Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. तो पहले इस स्पॉट को एक ऑर्गन की तरह समझने से पहले एक डिवाइस की ज़रूरत थी. व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ द डिवाइस? ये पर्पस कि ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने वाला एक स्पेशल ऑर्गन है, स्पॉट नहीं है, सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है उसकी बॉडी पे. This project won Ebright first place in county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. There he won third place for zoology. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. अब सजेस्टेड तो यही है कि इस पूरे पिंक हाईलाइटेड पार्ट में आप जो भी जितना मैक्सिमम लर्न कर सको पॉइंट्स लर्न करो, पर अगर नहीं भी कर सकते तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि उसका थीम ऑफ द प्रोजेक्ट क्या था. पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा एंड व्हाट वाज आउटकम ऑफ रिसर्च. आउटकम फर्स्ट प्लेस इन काउंटी फेयर, एंट्री इनटू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, थर्ड प्लेस फॉर zoology, चांस टू वर्क ड्यूरिंग समर एट एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च. 4 फ़ायदे थे इस रिसर्च के जो उसको हुए. आपको ये 4 पॉइंट्स लर्न करने. As a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa. That year his project won first place at International Science Fair and gave him another chance to work in the Army Laboratory during summer. इसको मुझे लगता है आप इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये हाई स्कूल की एक्सटेंशन है, तो आप इस ग्रीन हाईलाइटेड पार्ट को दोबारा से नया लर्न करने वाला है. इसमें कुछ नहीं, ये सब हाई स्कूल के अचीवमेंट्स ही हैं. इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर. अब वो हाई स्कूल से सीनियर क्लास में आ गया. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into a normal butterfly wing scales only if they were fed into the hormone from gold spots. अब उसने एक रिसर्च करी सीनियर हाई स्कूल में. उसमें क्या रिसर्च करी कि एक जो मोनार्क बटरफ्लाई के सेल्स हैं वो तभी प्रॉपरली डेवलप होते हैं जब तक उसको गोल्ड स्पॉट्स वाला हार्मोन नहीं मिलता. That project won first place for zoology at the international fair. He spent the summer after graduation during further work at Army Laboratory and at the laboratory of US Department of Agriculture. So let's proceed. अब मैं orange highlighted part read कर रही हूँ bottom of the page right side पे. The following summer after his freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. Using laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of the hormone. अब ये गोल्ड स्पॉट्स वाला जो हार्मोन था उसने उसको एक नेक्स्ट स्टेप दिया. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसको इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले और उसने हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर ढूंढा, एक चीज़. दूसरा, उसने केमिकल स्ट्रक्चर के फ़ोटोज़ लिए, एक्सरे उसका और किया और उसके बारे में और भी रिसर्च की. When he saw those photos, he didn't shout Eureka or even I've got it, but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzles: how the cell can read the blueprint of its DNA. DNA you all must have studied by now in your biology. DNA is a substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell, so DNA is the blueprint for life.
तो उसको इस हार्मोन के बारे में रिसर्च करते करते ये भी पता लगा कि हाउ सेल रीड्स द ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए। तो ये जो गोल्ड स्पॉट्स थे, इसके जो भी इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स, यूजेस और आप कह लो कि आउटकम्स दैट ही कुड डिराइव आउट ऑफ दिस रिसर्च ऑन 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स, आई हैव मार्क्ड ऑल दोज पॉइंट्स बाय यूजिंग दीज एरोज। तो ऑन दिस पेज, तो आप उन सबको एक बार रिवाइज कर लेना। Ebright and his college roommate, James R. Wong, worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together, they later wrote the paper that explained the theory. Surprising no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510. Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School and he began doing experiments to test his theory. मुझे नहीं लगता कि ये वाले जो फैक्ट्स हैं अब तक हमने 2 पैराग्राफ्स में लर्न करने वाला कुछ, आप एक बार इसको बस रीड कर लेना. If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding of the processes of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. तो ये आप learn कर सकते हो. This is the possible, you can say, projection about what can be the use of Ebright's theory. All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. अब यहाँ पे हमने ये देखना है क्योंकि नेम ऑफ द चैप्टर है व्हाट इट द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, व्हाट इट टेक्स टू मेक अ साइंटिस्ट. सबसे पहले साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट्स on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये स्टेटमेंट डाल के कि उसकी हाई स्कूल रिसर्च इनटू पर्पस ऑफ द स्पॉट्स ऑफ मोनार्क प्यूपा लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, कैसे प्रूव इट. तो इसमें आप जो पिछले पेज पे हमने पॉइंट्स मार्क करे थे वो सारे पॉइंट्स इसके आंसर में लिखोगे. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का. सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा व्हाट ऑल डज इट टेक टू बी अ साइंटिस्ट. उसमें पूरा कैरेक्टर आएगा रिचर्ड एब्राइट का, जिसमें उसके चाइल्डहुड से सारी बातें आएंगी. वो उसको मैं आप 2 मिनट के लिए एंड में डिस्कस करूँगी. Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't had time for other interest. He became a champion debater. इसके other skills आपको mark करने हैं. Number 1 champion debater, number 2 public speaker, good canoeist, all-round outdoors person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. In high school, Richard Ebright was a straight A student. Because learning was easy, he turned a lot of his energy towards debating in model United Nations clubs. He also found someone to admire, Richard E. Wheeler. मैंने आपको बताया था समरी में कि he is a teacher who admires Ebright, his social studies teacher and advisor to both the clubs. Mr. Wheeler was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas. Richard would always give that extra effort. Mr. Wheeler said, what pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and other interests. So because Richard Ebright को MU in researches, Model United Nations clubs में, in researches में, debates में interest था, तो he always did the extra effort. So this skill, this habit, this quality of giving one extra effort into what all you do makes Ebright a great scientist. Richard was competitive, not in a bad sense. He wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. He was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reasons, he wants to be the best. तो थर्ड क्वालिटी जो रिचर्ड की है, being competitive in the right spirit. ये आ जाता है रिचर्ड का कैरेक्टर, जिसमें एब्राइट के what makes him a great scientist का ये भी एक और पॉइंट आता है. And that is one of the ingredients in the making of a scientist. Start with a first-rate mind, add curiosity, mix in the will to win for the right reasons. Ebright has these qualities from the time the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him. Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. So what goes in the making of a scientist? Most of the content is on this page and you'll pick up a few bits from here and there from the basis of the chapter, from the first page of the chapter. So that was all for this chapter, The Making of a Scientist. I hope you enjoyed this chapter.
This chapter is quite fact based. You will have to learn them, you'll have to cram them very honestly. Make your notes, but if you do that it won't take much time. तो मैंने जो भी पॉइंट्स मार्क करे हैं उनको मार्क करो, उनको सुनो, रिवाइज करो. इस वीडियो को 2 बार सुन लेना. इवन इफ़ यू लिसन इट एट अ फास्टर स्पीड, प्लेबैक स्पीड इंक्रीज़ करके, आपको जल्दी रिवीजन हो जाएगी. बाकी मैंने एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो भी इसकी डिज़ाइन करके डाली है प्लेलिस्ट में, आप उसको देखकर जल्दी रिवाइज कर सकते हो. Keep excelling in English and be with me at eClasses by Shalini ma'am.